Okay, now listen to me. Good morning, everyone. So today we are going to start this topic, playing with numbers, which already you learn. Okay, in the month of April, 50% syllabus was completed in that period. Now, the next subtopic, that is the test of divisibility. Why we are using the test of divisibility and when we have to use this one. Okay, so see here, when we have to use and what are the importance of this test of divisibility. Test of divisibility means what? Okay, now see here, what are the importance of this test of divisibility? Test of divisibility. Divisibility means division. We have to divide the given number. Okay, suppose any number is given to you, a 5-digit number, 6-digit number, or 7-digit number is given to you, and suppose anybody asks you, is this number is divisible by 2? This number is divisible by 3? Is this number is divisible by 4? Then what you have to do here? What we have to do there? Hello? We have to divide that number with 2. Kya? What? Yes? We have to divide that number with the 2. Okay, very good. So suppose the number is given to you. Suppose I am writing here a 4-digit number 1, 2, 3, 4. Okay, this is one of the number 1234. And suppose I will ask you, is this number divisible by 2? Is this number divisible by 3? तो हम क्या करते हैं? What we have to do there? हम क्या करते हैं? इसको divide करते हैं. And after dividing, suppose after division, when the remainder is 0, when we get the remainder 0, then we can say that this number is divisible by 2 or this number is divisible by 3. Okay? But suppose the remainder is not 0. In place of 0, suppose there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, any number is there, remainder, and we can say that this number is not divisible, that particular number. Okay. So, Sir, your voice divide the given number. Listen here. So suppose the number is given to you and anybody asks you, is this number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6? Okay. So without dividing that given number, you can easily find out the given number is divisible by 2 or divisible by 3 or divisible by 5. You can easily find it. Okay. By using this test of divisibility. इस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर हमें पता है तो हम बिना डिवाइड किए इसे हम बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है. ठीक है. ओके, अंडरस्टूड. सो व्हाट आर द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये हर नंबर की होती है. ठीक है. लेकिन अगर आप इसको कम से कम 2 से लेकर 13 तक, 15 तक, 19 तक भी अगर याद रखते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से. ओके. द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2. पहला 1 की अगर लेंगे प्रॉपर्टी तो क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1? 1 क्या कहता है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1. कोई भी नंबर रहने दो, फॉर एग्जांपल सेम नंबर 1, 2, 3, 4, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1. एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1. 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है. सो नो नीड टू राइट दैट प्रॉपर्टी. Okay, so we have to start from the 2. What is the test of divisibility of 2? Is this number is divisible by 2? So how to identify the given number is divisible by 2? So what you have to do? First you have to find out the given number is even or odd number. Okay, the given number is even number or odd number. Then you can easily find the given number is divisible by 2 or not. Now you have to tell me how to identify the given number is even or odd. कैसे find करते हैं हम numbers को odd है या even? सर, जो हमारे लास्ट के नंबर रहते हैं उन्हें हमें देखना चाहिए कि वो odd है. Okay, very good. Last digit जो है, लास्ट डिजिट जैसे कि 4 है, लास्ट डिजिट में किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर रहा, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4 अगर कोई नंबर रहा तो हम उसे इवन नंबर कहते हैं. Okay, now 4 is here, so this is the even number. और अगर लास्ट डिजिट 1, 5, 7 और 9 अगर रहा तो ये नंबर होते हैं ऑड.
ठीक है, अभी यहाँ पर 4 है इसलिए ये इवन नंबर हो गया। एंड एवरी इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। ओके, लो सी हियर, सर आपकी आवाज divisibility ईगो हो test रही क्या है। है? Two means what? Every even number, मैंने लिखा है शॉर्टकट में, every even number is divisible by 2। हर even number 2 से डिवाइड नहीं है। बिना डिवाइड किए मुझे बता सकते हैं 2 से डिवाइड होता है या नहीं? कैन यू टेल मी द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट? हाँ, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। Is this number is divisible by 2? Yes. 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 1234 is divisible. 1234 This number is divisible by 2 because hello. So listen here. So every even number is divisible by 2. Every even number is divisible by 2. How to identify the given number is even? Because suppose the number is even, is it 0, 2, 4, 6 or 8? Is that number is even number and every even number is divisible by 2. Okay, this is the property of 2 or test of divisibility of 2. Okay, understood? Now here, third one means 3. ठीक है, second number is what? 3. What is the test of divisibility of 3? मैंने यहाँ लिखा है all the numbers. What we have to do is sum of all the numbers. क्या करना है? Sum of all the numbers. Okay, see here, suppose same number is here again 1, 2, 3, 4. सर आपकी आवाज ईगो हो रही है। The given number is divisible by 3 or not. Okay, so what we have to do here? We have to add all the digits. You have to add all the digits. Suppose the sum is divisible by 3 means given number is divisible by 3. 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10 आ रहा है। इसकी सम कितनी आती है? 10 आती है। ठीक है, तो 10 जो है क्या 9 से डिवाइड होता है या 10 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। ठीक है, 10 9 के टेबल में नहीं आता, सॉरी 10 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, क्या 3 से डिवाइड नहीं होता? 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, नहीं सर। now listen here, test of divisibility of 3 means what you have to do here. Suppose the given number is like this and you have to add all the digits. Suppose same number is here, so you have to add these numbers, so you can get the sum of all the numbers 1 plus 2 plus 3 plus 4. This will be equals to 10. The 10 is not divisible by 3. 3 के टेबल में 10 नहीं आता या 10 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और समझो मैंने यहाँ पर एक और नंबर ऐड कर दिया। समझो यहाँ पर मैंने 2 लिखा सामने, 2 1 2 3 4। सपोज इफ यू ऐड इसकी एडिशन कितनी आ रही है? 12 आ रही। इसकी एडिशन कितनी आती है? 12। सो 12 इज डिविजिबल बाय 3। 12 जो है 3 से डिवाइड होता है या 3 के टेबल में 12 आता है। 3 4 12। ओके, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। मतलब ये नंबर अभी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, you have to remember sum of all the number is divisible by 3 means that number is divisible by 3. Understood? सर मुझे थर्ड वाला नहीं समझा। कौन सा? ये यस सर। हाँ, थर्ड वाला। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे याद रखना है आपको कि जो नंबर आपको दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है, आप वहां उस नंबर के सभी डिजिट की एडिशन करना है, सम करना है। अगर वो सम 3 से डिवाइड होती है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, अभी इसकी सम करके देखो आप कितनी आती है। 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10, 10 plus 2 12 आ रही। तो क्या 12 3 के टेबल में है? 3 4 12 होता है?
होता है ना? यस सर। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 12, मतलब 3 के टेबल में उसकी Yes, sir. एडिशन आ रही है, इसलिए ये नंबर अभी 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर अभी 3 से डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आता, मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड हुआ, ये उसका मीनिंग हुआ। ठीक है, नंबर कब डिवाइड नहीं होता? जब उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, कोई 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 5 कुछ भी आते रहता है, तब हम कहेंगे कि वो नंबर उससे डिवाइड नहीं हुआ। रिमाइंडर 0 आया मतलब वो नंबर उससे डिवाइड होता है। ओके, 3 के टेबल में जितने भी नंबर्स sir. आते हैं वो 3 से डिवाइड होते हैं, समझ में आ रहा है? 4 के टेबल में Yes, जितने sir. नंबर्स आते हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं, 5 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो 5 से डिवाइड होते हैं। समझ में आया? यस Yes, sir. ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। 4 क्या कहता है, हमें ये आपको याद रखने हैं। मैंने कल बताया था आपको टेबल्स लर्न करना है और आपको याद रखना है टेबल्स। वो नंबर्स आपके दिमाग में जाने चाहिए, आपको लगना चाहिए वो नंबर्स आपके दिमाग में फिट हो गए हैं। वैसे ही अभी इसे लर्न करके रखना है, आपको याद रखे तो भी चलेगा। अब देखो 4 का क्या कैसे याद रखना है? लास्ट 2 डिजिट, बस ये 2 याद रखो आप, लास्ट 2 डिजिट। तो करना क्या है लास्ट 2 डिजिट का? देखिए क्या करना है, देखो वो लास्ट डिजिट 2 है वो हाँ 4 के टेबल में आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। लास्ट 2 डिजिट मैंने लिखे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये कि कोई भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने वाले चाहिए, या फिर 4 के टेबल में आने वाले चाहिए। 4 के टेबल में बोलने से अच्छा है कि आप 4 से डिवाइड होने वाले चाहिए, ये कह सकते हो। अगर लास्ट के दोनों डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा के पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। ओके, इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अंडरस्टूड? वन ऑफ द एग्जांपल आई विल Yes, sir. एक्सप्लेन यू नाउ। सी हियर, एक एग्जांपल लेंगे। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, जैसे ये वाला 6 3 4 2, 6 3 4 2। तो अभी आप क्या करेंगे कि ये नंबर क्या 4 से डिवाइड होते हैं? ये 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर आप डिवाइड करके देख सकते हैं 42 को। तो कितना होता है? 4 1 जा 4, यहाँ पे 0, ये 2 आया, 4 0 जार 0। ठीक है, मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होता है, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर रिमाइंडर 0 0 नहीं आ रहा है, मतलब 42 जो है वो 4 के टेबल में है ही नहीं, इसीलिए ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता। अब मैं दूसरा नंबर लिखता हूं यहां पर 6 4 3 2। ठीक है, अब यहां पर लास्ट के 2 डिजिट देखिए 32, क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं? 4 8 जार 32। ओके, यहाँ रिमाइंडर 0 है, मतलब लास्ट के जो डिजिट है 2 डिजिट मैंने लिखा है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अंडरस्टूड? हेलो, समझ में आया अभी? ये आगे कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, देखो यहाँ पर 7 है 8 है, ये कितना भी बड़ा नंबर रहने दो। ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछा कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है क्या, तो आपको नंबर डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देखना है सिर्फ। वो आप ओरली भी करके देख सकते हो या शॉर्टकट में इस तरह से करके भी देख सकते हो। अगर आपको मालूम हो गया कि 32 है लास्ट 2 डिजिट, ये तो 4 के टेबल में आते हैं, ये दोनों डिजिट डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये पूरा के पूरा नंबर अभी 4 से डिवाइड होना ही है पक्का। अंडरस्टूड? गुड। ये वाली एक प्रॉपर्टी लेते हैं 5 वाली। ठीक है, लास्ट देखो ये 5 की बहुत ही इजी है। देखो मैंने क्या लिखा है 5 में, मैंने क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है मैंने, लास्ट डिजिट इज 0 और 5। डू यू नो द टेबल ऑफ 5? यस सभी को देखिए 5 के टेबल में 5 1 जा 5। सर सुनो इधर, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर और आगे है। ठीक है, 50 तक जाएगा ये टेबल। अब इसमें इस टेबल में ये टेबल आपको लर्न है। इस टेबल में आप वंस प्लेस देखिए या फिर यूनिट प्लेस देखिए।
5 या 0, 5 और 0, 5 और 0, 5 और 0। देखो क्या है वंस प्लेस में, एक तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 5 अंडरस्टूड। अगर किसी भी नंबर सर लास्ट में होना वंस चाहिए। प्लेस में, हेलो सुनो, सर लास्ट में होना चाहिए। किसी भी नंबर्स के वंस प्लेस में यानी लास्ट डिजिट 0 और 5 रहा तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। अंडरस्टूड। ओके सर। हेलो, समझ में आया? बहुत इजी है। मैंने लिखा यहाँ पर Yes, लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 रहा तो भी 5 से डिवाइड होता है और 5 रहा तो भी 5 से डिवाइड होता है। अभी समझ में आया आपको? अगर आपका मोबाइल Yes, sir. नंबर है 10 डिजिट का, ठीक है, 672950 ऐसा नंबर समझो है, कैन यू टेल मी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट? Yes, sir. डिवाइड होता है। Yes, अब sir. बताइए, It is divisible by 5. इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5? No. Now, is this number is divisible by 5? Yes. Yes. Okay. Yes. Because one's place contains 0 or 5 means that number is divisible by 5. Understood? Yes, sir. Okay. Write down this property. 5 तक लिखिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे पास लिखा हुआ है। हेलो, हाँ सर। आप स्क्रीनशॉट ले लो। 5 तक प्रॉपर्टीज लिखो। 6 के बाद मैं बताऊंगा आपको फिर से। पहले 5 तक की लिखिए आप। सर हाँ, सर Yes. आप जब सारे समझा दोगे तो इसकी फोटो व्हाट्सएप पे भेज दोगे। साइड प्लीज। हेलो, सर ये मेरे पास लिखा हुआ है। सर 11 सर जब आप अपना 6 तक प्रॉपर्टी समझा दो उसके बाद इसकी फोटो भेज देना। सर ओके, 7 तक की मैं फोटो भेज देता हूँ। फोटो ले लेता हूँ। ओके, पेज नंबर 35, second E. Listen here. Don't write anything. Just see here. Which of the following numbers are divisible by 2? Multiples of 2. What is written there? Which of the following numbers are divisible by 2? Now question is what? Which of the following numbers are divisible by 2? Which numbers are divisible by 2? So आप you know very well every even number is divisible by 2. आपने लिखा है number is divisible by 2. And how to identify the given number is a even number? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? When the last digit When the last digit is 0, 2, 4, 6. When the last digit is 0, 2, 4, 6, 8. That number is divisible by 2. Now see here, question number first, यहाँ लिखा है A में 362 Divisible by 2. Divisible by 2. 362 even or odd? Even. Why it is even number? Why it is even number? Because the last digit is 2. Last digit is the even number. So therefore this number is even number. So हाँ, okay. So this is even number. तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ. Yes. तो आपको उसको टिक करना है। टिक कीजिए आप इसे। 362 को आप टिक करो क्योंकि हमने लिखा है every number is divisible by 2 और ये जो नंबर है वो इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप टिक करो, जो नंबर इवन है उसे टिक करो, वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, किया आपने टिक? हेलो सर 1 मिनट बस। सर नोटबुक में नहीं लिखना है। रूल्स लिखना है। सुनो क्या करना है आपको, देखो मैं बता रहा हूँ। पहले मैं आपको इसका मैंने फोटो निकाला। हेलो, मैंने जो फोटो निकाली है आपको सेंड करूंगा, उसके बाद आपको नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, अब टिक करके रखो। ओके सर। अभी क्या करके रखना है? सिर्फ टिक करके रखो, बाद में लिखना है। फोटो सेंड करने के बाद फोटो का पहले लिखना है, बाद में एक्सरसाइज लिखनी है। ओके ओके सर। नाउ क्वेश्चन बी देखिए। क्वेश्चन बी 731
731. Not divisible by Is this number divisible by 2? Sir, no. No, No, it sir. is not divisible by 2 because this is not the even number, this is odd number. Because 1 in its ones place or unit place, उसके यूनिट प्लेस में 1 है, इसलिए वो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड सिर्फ क्या होते हैं, इवन नंबर ही होते हैं, इसलिए उसे करना है, उसे क्रॉस करके रख सकते हो, नहीं किए तो भी चलेगा। थर्ड वाला सी देखिए, फर्स्ट का सी 895, इज दिस डिविजिबल बाय 2? No, sir. No. No. Okay, C is not divisible by 2. Question D, first का D, 8,200 Yes, sir. Divisible number is divisible by 2. Again, take that number. Yes, sir. Yeah. Then question E, 217. No. Not divisible by 2 because this is odd number. Okay. Now question F, 812. Divisible by Yes, yes, yes. 2. टिक करो, F को टिक करना है. Then question G, कर दिया। again it is divisible by 2. Yes. उसे टिक कीजिए आप. Yes, sir. And last one, 5,818. That is also the even number. Even So number. this number is also divisible by 2. So tick that number. Yes, sir. Okay. Now see question number third. Question number third. Question number third. What is there? Which of the following question numbers number are two. divisible by 3? Sir, question number 2. Second. हाँ, sorry. Question number second. Question number second. सारे हैं सर, उसके सारे करेक्ट है। सभी नंबर डिवाइड होते हैं. Sir. Listen here. Question number 2 में नंबर which of the following numbers are divisible by 3? अब क्वेश्चन क्या है? Which of the following numbers are divisible by 3? तो आपको सबसे पहले 3 की, लिसन हियर, आपको सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होना जरूरी है, और वो टेस्ट है सम ऑफ ऑल द नंबर्स. If sum of all the numbers are divisible by 3, means whole number or that given number is divisible by 3. Okay? तो फर्स्ट नंबर है आपका सेकंड का ए 231, आपका नंबर है 231. देखिए 231. आप इसकी एडिशन करो, 2 plus 3 plus 1. Divisible by 3. 2 plus 3 plus Divisible 1. by 3. 2 plus 3 Yes, sir. It 5. is divisible by 3. 5 plus 1 is equal to 6. 6 हो रही. क्या 6 3 के टेबल में आता है? Yes, sir. अगर 3 के टेबल में आता है मतलब 6 जो है 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होगा, आप उसे टिक कर सकते हैं. आप टिक कर सकते हैं. ओके, सो टिक द नंबर. फर्स्ट वन 231. नाउ क्वेश्चन सेकंड का 343. Yes, sir. No, sir. No, Sir, by it is not divisible by 3, sir. Not divisible by यहाँ 3 4 3. देखो 2 plus 4 plus 3 कितना होता है? 10 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं। नहीं. ठीक है, 10 3 के टेबल में नहीं है, इसलिए नॉट डिविजिबल बाय 3. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है. नाउ क्वेश्चन सी, सेकंड का सी 861. yes, sir. It is divisible by Yes, sir. sir. It is divisible by 3 because sum is what 15. देखो कभी कभी क्या होता है, जो मैंने इसका आंसर निकाला है 8 plus 6 plus 1 is equal to 15. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 15 भी बड़ा नंबर है, आप फिर से एडिशन करो. 1 plus 5 6 होता है, आप फिर से एडिशन करो. 1 plus 5 6. अब ये छोटा नंबर हो गया, अब ये तो डिवाइड होता Yes, sir. Yes, sir. 6 3 5 are 15, दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होता है. आप उसे टिक कीजिए. ओके, Okay, sir. ठीक है. कैन यू सॉल्व द रिमेनिंग? Yes, Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. फिर देखो सॉल्व करना यानी क्या करना है, आपको टिक करके रखना है.
टेक्स्ट बुक में आप जब नोटबुक में सॉल्व करोगे तो टिक करे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जब तक याद रहेंगे तब तक आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यही प्रॉपर्टी ही पता नहीं तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। एंड इफ यू डिवाइड एनी नंबर सो इट टेक्स मोर टाइम, ये आपका बहुत ज्यादा समय लेगा, आप डिवाइड करने में काफी समय लग जाएगा और आपके बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको Yes, sir. बिना डिवाइड किए, आपको अगर ये लर्न है तो आप बिना डिवाइड किए बता सकते हो कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following numbers are divisible by 4? हाँ, लास्ट ABC नहीं होता है। which one? ई वाला नहीं होता सिर्फ। ई वाला नहीं होता है। मत बता, हम करेंगे। कौन सा ई वाला है? सर ABC नहीं होता। सर थर्ड का ई वाला। अच्छा, थर्ड का ई वाला सर ई वाला नहीं होता। क्या बाकी सभी Yes, डिवाइड sir. होते हैं 4 से? हेलो, नहीं सर नहीं फर्स्ट नंबर देखिए, नहीं 132 है फर्स्ट नंबर। ओके, शायद। तो 132, सर होता है। हम हाँ, लिखेंगे। ओके, सर, होता 132 है। दो डिजिट होता 32 है। ये 4 से होता डिवाइड होते हैं। 4 8 are 32। अगर आपका Yes. know the triple of 4 8 are 32 is this number is divisible by 4, so that's why this whole number is divisible by 4। इसके आगे 4। फोर बस रहने दो, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा ही। ओके, हो तो Okay. फर्स्ट वन टिक करो। 72 देखो, दो ही नंबर है, इसको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा आपको। 4 से डिवाइड होता है, 4 1 जा 4, यहाँ पर 3 आया 32, 4 8 जा 32, मतलब ये भी डिवाइड होता है, यस सर। ये भी डिवाइड होता है। थर्ड वाला 82 है, देखो 382। नेक्स्ट नंबर 382, नो सर, 382, आपको इसको डिवाइड करना है 82 नो से। सर, आप नो सर। 4 2 are 8, यहाँ पर 0 हुआ, if there is और यहाँ 80 पर then it 2। is divisible by तो 4। ये डिवाइड नहीं होता है, 4 0 जा 0, तो ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। यस सर। तो ये नंबर 82 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो सी वाला डिवाइड नहीं होता। क्वेश्चन डी देखिए, लास्ट में होता दो है। डिजिट 36 ई होता है। होता है, 4 9 जा 36। 4 9 जा 36। वेरी गुड, सर 4 9 जा। हाँ 4 9 जा, वेरी गुड। ओके, नाउ क्वेश्चन ई नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता, लास्ट नहीं वन होता। 12, लास्ट वाला होता है होता है, very good। होता है। फोर जा। 4 3 are 12। हाँ ओके, 4 3 जा 12 किया आपने, ठीक। यस हाँ सर। सर। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन सर। नंबर 4, which of the following numbers are divisible by 5? Which of the following numbers सर are divisible by 5? सर ए सर सर ए बी ए डी और ई और ओके ओके, नाउ लिसन हियर। तो आपको शायद ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, ऐसा मैं समझता हूँ। आपने कैसे किए, कौन सा Yes, sir. डिवाइड होता है कौन सा नहीं होता, आपने कैसे फाइंड किए, हाउ टू आइडेंटिफाई? सर क्योंकि 5 से divisible वो नंबर है जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। लिसन हियर, if the number contains 0 or 5 in its ones place, then that number is divisible by 5। तो आपने ये देखा है कि कोई भी नंबर रहने दो, आपने क्या देखा है उसका कि लास्ट जो है या फिर अगर 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट नंबर में देखिए 0 या 5 है क्या? हाँ है। यस, तो फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो टिक करो आप फर्स्ट को। सेकंड, सर बी भी होता है, बी भी होता है। सेकंड बी भी होता है, बी क्वेश्चन होता है, देन ई होता है, देन नहीं एफ होता है, फिर सी जी नहीं होता है, क्योंकि then लास्ट में 3 है, F होता है। लास्ट में 3 है इसलिए नहीं होगा। डी, क्वेश्चन डी ई है। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता, Question डी नहीं E होता, ई होता है। क्वेश्चन ई होता है सर, Yes. ई होता है। 6105 5 है वहां पर, इसलिए वो डिवाइड होगा। एफ होता है, 0 है लास्ट में, यस सर, होता भी होता है, है, होता है। एच भी होता है, और लास्ट जी भी होता है, एच भी होता है सर, और लास्ट में नहीं होता, ठीक है। और लास्ट में वो नहीं होता, लास्ट वाला नहीं हो रहा है, वन है। ठीक है।
तो मैं हाँ। समझता हूँ अभी आपको सभी कुछ समझ में आ गया है।